Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. I am going to discuss 70 sentences for this video, so watch the video till the end. तुम अक्सर कौन से गाने सुनते हो? What music do you generally listen to? Because there are a lot of types of music out there. What music do you generally listen to? क्या तुम बॉलीवुड गाने सुनते हो? Do you listen to Bollywood songs? Do you listen to Bollywood songs? मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया हूँ. I have failed in my exams. I have failed in my exams. You definitely did not study properly, so that is why the reason. काश मैंने और पढ़ाई की होती. Now you are regretting. I wish I had studied harder. I wish I had studied harder. मेरी कार बेकार है. My car is useless. When your car usually gets out of order immediately and again, so you can say your car is useless. My car is useless. काश मैंने इतनी पुरानी कार नहीं खरीदी होती. You have purchased a second hand car. I wish I had not bought such an old one. I had not bought such an old one. इज्जत कमाई जाती है. So respect is earned. As you do the work, people will respect you. As you do the bad work, people will disrespect you. Respect is earned. हमें डॉक्टरों की इज्जत करनी चाहिए because right now the condition we are facing, just doctors are the people who are just supporting us, standing by us. We should respect doctors. क्या इस साल IPL होगा? Because the condition of our country is very worse and BCCI cannot allow to play IPL this year. Will IPL take place this year? Will IPL take place this year? 2020 में IPL नहीं होगा. I don't know the official announcement from the committee, but there is more possibility. There will be no IPL in 2020. There will be no IPL in 2020. सब एक्टर बनना चाहते हैं. Everyone wants to become an actor. Everyone wants to become an actor. It is present in definite tense. Actor बनना कठिन है because you are supposed to do a lot of stunt by yourself. So it's hard to become an actor. It is not that easy we consider it. It's hard to become an actor. Acting अच्छा career है. Yeah, we can make a lot of money through it, but it's need a hard work and patience as well. Acting is a good career. Acting is a good करियर. वो लगातार तुम्हारे लिए खत लिख रहा है. When somebody is in deep love with you, he is constantly writing letters for you. He is constantly writing letters for you. माफ़ कीजिए, मैं आपको समझा नहीं. I am sorry, I didn't catch you. I am sorry, I didn't catch you. When the is the main point of the talking. वो entrance test पास नहीं कर पाया. He couldn't pass the entrance exam या फिर टेस्ट बोल सकते हैं. He couldn't pass the entrance exam या टेस्ट. वो लगातार मुझसे पैसे उधार ले रहा था. He was constantly borrowing money from me. He was constantly borrowing money from me. मुझे खाने के लिए कुछ मीठा चाहिए. When you're craving for sweet, so you can say I want something sweet to eat. I want something sweet to eat. वो मेरा बॉस है. When you work for any company, so there will be a boss who will give you the tasks, work to complete. He is my boss. When you want to introduce your boss with your friends, so आप लोग बोल सकते हैं he is my boss. उसे अपनी परछाई से डर लगता है. It means he is very coward person. He is afraid of his own shadow. He is afraid of his own shadow. ये घड़ी रुक गई है. When the cell weaks, so the clock stop working. This clock has stopped. This clock has stopped. It is present perfect tense. ये घड़ी काम नहीं कर रही है. This clock is not working. This clock is not working. Instead of using working, you can also say functioning. मुझे दवाई लेनी है. When you are suffering from any disease and it is just acute disease for some days, so I have to take medicine. I have to take medicine. ये दवाई खाने के बाद लेना. Take this medicine after meals. Take this medicine after meals. Some medicine are supposed to be taken without eating anything. इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. This medicine has no side effects. This medicine has no side effects. So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence is TV बंद कर दो, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. When you're focusing on a study and doing studying on the other side and somebody is watching television, so you can say मैं आपको नुकसान पहुँचा
पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी, टू हार्म यू, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग टू हार्म यू। मुझे हल्का बुखार है। जब आपके पास कुछ भी चीज़ होती है उसके हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई हैव अ स्लाइट मतलब हल्का, फीवर बुखार। ऐसे ही आप ऐसे बनाएंगे, मुझे हल्का ज़ुकाम है। आई हैव अ स्लाइट कोल्ड, आई हैव अ स्लाइट कोल्ड। मुझे बताओ तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो। टेल मी वाई यू वॉन्ट टू गो देयर। वैन यू वॉन्ट टू नो समबडीज रीज़न बिहाइंड गोइंग समवेयर, सो आप लोग पूछ सकते हैं लाइक दिस वे, टेल मी वाई यू वॉन्ट टू गो देयर, वॉट इज़ गुड देयर सो यू वॉन्ट टू गो। मैं तुमसे मिलूंगा जब तुम्हें ठीक लगे, इट मीन्स यू वॉन्ट टू मीट समबडी अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। आई विल सी यू वेन एवर इट सूट्स यू, आई विल सी यू वेन एवर इट सूट्स यू। हमें कूड़ा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो इट्स वेरी गुड हैबिट, वी शुड ट्राई टू कीप अवर एरिया एज क्लीन एज पॉसिबल। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। क्या आप दोहरा सकते हैं आपने अभी क्या कहा, व्हेन यू मिस द पॉइंट? तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। कुड यू प्लीज़ रिपीट, दोहराना, व्हाट यू जस्ट सेड, आपने क्या कहा, क्या आप दोहरा सकते हैं? तो अगर आपको बस कॉमनली ये पूछना है तो आप बहुत सिंपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट, कुड यू रिपीट दैट। उसने उस पर उंगली उठाई, शी पॉइंटेड हर फिंगर एट हिम, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड शी, उसने उठाई, पॉइंटेड हर फिंगर, अपनी उंगली उस पर, एट हिम। एंट्रेंस फीस कितनी है, हाउ मच इज़ द एंट्रेंस फीस, हाउ मच इज़ द एंट्रेंस फीस। मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। So you must have done very well as compared to the other guys competitive. I won first prize, I won first prize. इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट रेस्पेक्ट nobody can survive their life. Respect is so important, respect is so important. सफलता की थोड़ी उम्मीद है, there is little hope of success, there is little hope of success. लड़ाई की संभावना है, there is possibility of war, there is पॉसिबिलिटी मतलब संभावना लड़ाई की, ऑफ वॉर। एक पेज गायब है, देयर इज़ अ पेज मिसिंग। जैसे आपकी कोई भी बुक है उसका एक पेज फट गया है तो वो गायब हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ अ पेज मिसिंग। उसकी दो पर्सनैलिटी है, इट मीन्स ही इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, मतलब आपके मुंह पे कुछ बोलेगा और पीठ पीछे कुछ बोलेगा, तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ डुअल पर्सनैलिटी। बैंक 9 बजे खुलती हैं, बैंक्स ओपन एट 9 ड्यू टू दिस लॉकडाउन, सो द होल टाइमिंग हैज़ बीन चेंज आई थिंक। बैंक्स ओपन एट 9, वो लगातार अपना मन बदल रहा है, वंस ही डिसाइड समथिंग सो अपना मन बदल देता है लगातार। ही इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज माइंड, ही इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज माइंड। आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ाई की होगी, यू मस्ट हैव स्टडीड वेल, यू मस्ट हैव स्टडीड वेल। मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आई डेंट मीन टू ऑफेंड यू, आई डेंट मीन टू ऑफेंड यू, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू फॉर एनीथिंग, आई विल नॉट स्पेयर यू फॉर एनीथिंग। मुझसे नीचे मिलना, मीट मी डाउन स्टेयर्स, मिलना, मीट मी, मुझसे नीचे, डाउन स्टेयर्स, मीट मी डाउन स्टेयर्स, इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। मुझ पर ज़्यादा हुक्म मत चलाओ, व्हेन समबडी गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, तो आप बोल सकते हैं डोंट बॉस मी अराउंड, डोंट बॉस मी अराउंड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। मजबूर होकर मुझे ऐसा कहना पड़ा, बीइंग हेल्पलेस आई हैड टू से सो, बीइंग हेल्पलेस मजबूर होकर, मुझे ऐसा कहना पड़ा, आई हैड टू से सो। मैं दिन रात काम करता हूँ, आई वर्क अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब दिन रात, जैसे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, ऐसे आप बोल सकते हैं। वो फरार है, सो गाइज इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं, ही इज़ एट लार्ज, एट लार्ज मतलब फरार होना, आउट ऑफ पुलिस ग्रिप्स, ऐसे बोल सकते हैं। अपने नौकर को ज़्यादा छूट मत दो, डोंट गिव फ्री हैंड टू योर सर्वेंट, डोंट गिव फ्री हैंड टू योर सर्वेंट। उसका रंग काला है या फिर सांवला है, हिज कॉम्प्लेक्शन इज़ डार्क, हिज कॉम्प्लेक्शन इज़ डार्क।
मैं बहुत घबरा गया। आई बिकेम वेरी नर्वस। आई बिकेम वेरी नर्वस व्हेन आई बिकेम नर्वस बिफोर गोइंग ऑन अ पोडियम और स्टेज टू डिलीवर अ स्पीच। तो आप लोग बोल सकते हैं मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी सैड टू हियर दैट। आई एम वेरी सैड टू हियर दैट व्हेन यू हर्ड समबडीज स्टोरी एंड विच इज़ वेरी हार्ट टचिंग। तो आप बोल सकते हैं वो उदास लग रही है। सो इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी ही लुक्स सैड या फिर शी लुक्स सैड अगर वो गर्ल है तो। उदास मत हो, डोंट बी सैड। somebody can say to you don't be sad over a little thing, don't be sad, it is usually keep happening. वो बहुत थका हुआ है। सो इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी ही इज़ वेरी टायर्ड। ही इज़ वेरी टायर्ड। टायर्ड की जगह आप एग्जॉस्टेड वर्ब यूज़ कर सकते हैं। सब कहते हैं प्यार अंधा होता है। एवरीवन सेज लव इज़ ब्लाइंड। एवरीवन सेज लव इज़ ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। लव इज़ ब्लाइंड। लव मतलब प्यार होता है, इज़ ब्लाइंड अंधा। लव इज़ ब्लाइंड। लव सिंगुलर है, दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग इज़। सोचो उसने मुझसे क्या कहा था। गैस वॉट ही टोल्ड मी। गैस वॉट ही टोल्ड मी। ज़्यादा नमक मत डालना। व्हेन यू डोंट प्रेफर टू मच सॉल्ट, सो आप बोल सकते हैं डोंट ऐड टू मच सॉल्ट। डोंट ऐड टू मच सॉल्ट मतलब नमक। मेरा पेट भरा हुआ है। सो इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी माई स्टमक इज़ फुल। माई स्टमक इज़ फुल। मेरा एक कप चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी। आई फील लाइक का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अब आपका कुछ मन करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। मुझे नमक देना ज़रा। व्हेन यू वांट समबडी पासेस यू सॉल्ट, तो आप लोग बोल सकते हैं पास मी द सॉल्ट प्लीज़। इट इज़ अ पोलाइट वे दैट आप किसी से मांग रहे हो कोई चीज़। पास मी द सॉल्ट प्लीज़। उसे पहला प्राइज़ मिला। व्हेन समबडी विंस द फर्स्ट प्राइज़ इट मीन्स उसने अच्छा खेला होगा। ही मस्ट हैव प्लेड वेल। ही गॉट फर्स्ट प्राइज़। ही गॉट फर्स्ट प्राइज़। मैं वहाँ एक और बार जाना चाहता हूँ। व्हेन सम प्लेस इज़ फैसिनेटिंग यू दैट ड्रैगिंग यू टू गो देयर अगेन, सो आप लोग बोल सकते हैं आई वांट टू गो देयर वंस more. I want to go there once more. वहाँ कोई नहीं था। Nobody was there. Nobody मतलब कोई भी नहीं था। Was there वहाँ। हमें देरी हो रही है। सो इट्स इंग्लिश विल बी वी आर गेटिंग लेट। वी आर गेटिंग लेट। वी के साथ आर का यूज़ किया है एंड गेटिंग मतलब होना, देरी, लेट। सो यही था आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन अ लाइफ बिकॉज वी ऑलवेज गेट लाइफ वंस। तो वी शुड not waste our life. We should not spend our time doing something else. We should focus on our goal and we should try to spend our quality time with our parents and the loved ones, the dear ones, the closer ones which is very close to you. So due to that we are not able to give them time, so we should try to give them time out of our busy schedule if we are busy. So and we should keep focusing on the goal we are predicting to be, we are supposed to be. So these were something what I want to tell you. So meet in the next video. Catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Share this video with a friend who wants to learn English with these steps of daily English sentences. Meet in the next video. Catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.